हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर गोविंद राय गर्ग उर्फ आपका फेवरेट डॉक्टर गोगा. तो विद मी इज डॉक्टर वंश. आई एम रिप्रेजेंटिंग Cerebellum Academy here, and Dr. Vansh is an excellent student of ours who has just recently cleared the FMG exam with the superb 212 marks. Vansh, congratulations first of all. Thank you so much, sir. Please introduce yourself to our audience. Hello, everyone, and my name is Dr. Vansh Chopra, and I have completed my MBBS from Jilin University, China, and I am a batch 17 student, and this was my very first attempt which I gave, and luckily I scored 212 out of 3,000 in my very first attempt, and I am super happy and very excited for this day, and I'm just speechless basically because it's really a very great moment for me. That's great. Definitely, it's a great day in the life of a medical student, particularly foreign medical graduate who Yes, clears sir. this exam. Obviously, I can feel the feelings you have. Yes, sir. Yeah, Dr. Vansh, first of all, I would like to congratulate you as well as your parents. अपने parents Thank you, का भी sir. नाम लो, please. Definitely, sir. So my father's name is Mr. Vijay Kumar and my mother's name is Mrs. Neera. And definitely they're they definitely play a very major role in this because unki wajah se I am able to do this without any problems. I did everything so smoothly. They accommodated their schedule because of my study pattern. Like I used to stay awake at the entire night, so cooking food for me and giving me supplies time to time so that my studies don't get interrupted. So it's definitely a dream come true with the help and constant support and motivation by my parents. So they play an extraordinary role in that. Definitely. I congratulate your parents also, and again, I thank them from your side also. Thank you, sir. Acha Vansh, when you started study, Mhm. seriously, when you started studying for the FMG exam? Yes, sir. Sir, actually, to be honest, sir, pharmacology was my first subject. I started this preparation, and वो भी मैंने English में देखा था, and the way it just got me into studies was like कि मतलब उसके बाद मेरा ऐसा attachment हो गया ना कि मतलब मेरा first subject में जब start किया पहले I was like just एक वीडियो देखी या दो वीडियो देखी in a day, but when the way you teach, sir, it's exceptionally phenomenal. एंड वो एक बार एक होता था कि ओके यार नेक्स्ट वीडियो में मे बी समथिंग न्यू, समथिंग मोर क्रिएटिव, समथिंग मोर इनोवेटिव ना, तो वो इतना फ्लो इतना तगड़ा बिल्ड हुआ ना कि उसके बाद से आई गॉट इनटू रूटीन ऑफ स्टडीइंग एंड मतलब जिस दिन आई वाजंट स्टडीइंग आई वाज फीलिंग लाइक आई एम मिसिंग अ मेजर चंक ऑफ माय लाइफ. सो फार्माकोलॉजी वाज डेफिनेटली फर्स्ट सब्जेक्ट आई स्टार्टेड विद. एंड सेकेंडली मैंने सारी मेन सब्जेक्ट की वीडियोस से स्टार्ट किया था एंड आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन अराउंड 2021, द बिगनिंग ऑफ 2021. एंड तब से मैं एट अ स्लो पेस लगा हुआ था, धीरे धीरे, मतलब कोई प्रेशर नहीं था. एंड आई वाज एट माय होम ओनली बिकॉज ऑफ कोविड वेकेशंस एंड ऑल. सो अच्छा खासा टाइम मिल रहा था पढ़ने का, तो एट अ स्लो एंड स्टडी पेस 3 घंटे से आई स्टार्टेड स्टडिंग. एंड टिल डेट मतलब एग्जाम से पहले भी जो लास्ट के 2-3 दिन थे तब भी मैं 2 या 3 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा. दैट वाज माय जस्ट स्लो That's स्टेटमेंट. great, यार. You are the first students who are saying me कि मैं consistently 2-3 घंटे डेली पढ़ा हूँ. Otherwise, most of the students we interview or we talk to whoever have cleared the exam, they usually say हमने 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे पढ़ाई की है दिन में. हम लाइट में बैठ के पढ़ाई की है, हम स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ाई की है, and then so on. वो फेज भी आता था कभी कभी, जैसे 1-2 दिन मेरी पढ़ाई नहीं हुई तो लगता था कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर एट अ स्टेज कभी 6 घंटे बैठ गया, कभी 8 घंटे बैठ गया, बट अदरवाइज 4 या 5 घंटे वाज द मैक्सिमम आई स्टडीड एट अ टाइम. एंड आई थिंक उसके बाद ब्रेन भी इतना वो होता है ना, कैपेसिटेट हो जाता है पूरी तरह कि आगे फिर फोकस नहीं हो पाता, फिर वो ना बस होते जस्ट कंप्लीटिंग फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द गोल, दैट्स ऑल. डेफिनेट. ये आपने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है. मैं भी सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, लोग मेरी बात मानते नहीं है. मैं कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आप 3 साल पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर रोज के 2 से 3 घंटे भी पढ़ते हो तो आप सब कुछ पढ़ लोगे. ठीक है. तो इम्पोर्टेंट थिंग इज आप एंड में आके 3 महीने में सब कुछ करने की कोशिश करोगे, तब तो आपको 15 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 साल की चीजें, 5 साल की चीजें आप 3 महीने में कैसे करोगे. बट अगर आप शुरू से ही पढ़ना शुरू कर दो तो आपको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी. यू जस्ट कीप ऑन स्टडिंग 2-3-4 hours डेली, एंड इफ यू कैन बी कंसिस्टेंट, देन डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट रिजल्ट.
लाइक डॉक्टर हाँ वंश। जी, हाँ जी। अच्छा वंश, मुझे ये बताओ कि वाइल यू वर स्टडिंग, यू मस्ट हैव गिवन सम ग्रैंड टेस्ट आल्सो, दिए थे कि नहीं दिए हाँ थे? सर, यस तो सर। ग्रैंड टेस्ट में आपका सफर कैसा रहा, कि आपने कितने ग्रैंड टेस्ट दिए थे, कितने मार्क्स से स्टार्ट किया था, सर एवरीथिंग अबाउट दैट। लकीली मैंने जितने भी ग्रैंड टेस्ट दिए आज तक मैं किसी ग्रैंड टेस्ट में फेल नहीं हुआ। ग्रेट। एंड मैंने ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर फेब से, बिकॉज एक्चुअली व्हाट आई वाज एमिंग फॉर जून अटेम्प्ट ऑफ 2022, बट यूनिवर्सिटीज जैसे डॉक्यूमेंट्स डिले हुए तो कुछ प्रोसेस हुआ, तो फिर अल्टीमेटली आई एम फॉर दिसंबर। तो मैंने फेब में लास्ट ईयर फेब से जैसे ग्रैंड टेस्ट दिए थे, मैं वीकली ग्रैंड टेस्ट देता था। एंड ग्रैंड टेस्ट में मतलब उस समय तो और अच्छा स्कोर आता था, बिकॉज एकदम फ्रेश था ना, तब एकदम फ्लो मेंटेन था, तो मतलब इट स्कोर वाज लाइक 170, 178, 180, 191। मेरे को भी याद है मेरा एक जीटी प्रेप के जीटी में स्कोर गया था सर 246। एंड दैट ओके। वाज द डे, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि आ कैसे गया, इट वाज अनबिलीवेबल, बिकॉज प्रेप के जीटी आर सर वेरी टफ कंपेयर टू एनी पीवाईक्यू वीडियोस वी सी, एनी वीडियोस वी सी, या कोई और भी अदर प्लेटफॉर्म्स है जैसे कोई भी, तो प्रेप की जीटीज आर, आई फील दे आर वेरी टफ एंड दे आर वेरी यू नो इंटीग्रेटेड इन अ सेंस कि मतलब लगता है कि एकदम नया सारी इंफॉर्मेशन है। तो ऑन एन एवरेज मैंने अराउंड 15-20 जीटीज दिए तब से लेके अब तक, एंड कॉन्स्टेंटली मेरा स्कोर मतलब 180 प्लस था, ऑलमोस्ट सब टेस्ट में मेरा स्कोर 180 प्लस था। तो एक टेस्ट में आपके 246 आए, उस दिन आपने हाँ जी। दोस्तों को पार्टी कहाँ दी? सर उस समय तो मैं खुद को डाइजेस्ट करता था कि मेरे स्कोर है, फिर मैंने वापस उसको रिव्यू करा कि मेरा ये सारे, ओ हाँ सही है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। यस सर। अच्छा, आपने जैसे जर्नी की, तो फाइनली आपने बाद में आके सेरेबेलम का ओआरआर कोर्स भी दिल्ली में ज्वाइन किया है ना? यस सर, मैं यस सर। तो आपने सेरेबेलम के ओआरआर कोर्स में आपकी कुछ हेल्प की प्रिपरेशन में? सर वो आई वुड जस्ट से कि वो इतना कंसाइज वे में, जितना मैं 1-1.5 साल से 3-3 4-4 घंटे करके प्रिपेयर कर रहा था, एंड ऑब्वियसली सेरिबेलम में मेरे सारे फेवरेट फैकल्टीज थे, तो मतलब मेरे को ऐसा भी नहीं लगा कि मैंने कोई फैकल्टी स्विच करा, मेरे को ये था मैं अपने ही फेवरेट फैकल्टी से सबसे पढ़ रहा हूँ। तो जितना मैंने पहले अच्छे से भर भर के पढ़ा था ना, वो सारा ये था कि सेरिबेलम में मेरे को एकदम क्रिस्प, टू द पॉइंट, एकदम टिक टिक करता हुआ सारा नोट करके ना, मतलब इट वाज वेरी कंसाइज रिवीजन, एंड वो 19 डेज वर आई थिंक द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ, जिस दिन मैं तरीके से 10-10 12-12 घंटे पढ़ा हर रोज। अदरवाइज मेरा मेंटेन पेस वही था 4 घंटे मैक्सिमम। बहुत बढ़िया। तो अच्छा इट वंश, वाज आप वेरी हो कहाँ गुड। से बेसिकली? सो मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही हो। हाँ जी ओके। हाँ। तो आप आपका सेरेबेलम एकेडमी में फेवरेट फैकल्टी कौन कौन से हैं और क्यों है? सर ऑब्वियसली आपको तो मिस कर ही नहीं सकते। आप तो नहीं, मैं जानो। तो सामने हूँ तो। सर नहीं सर, डेफिनेटली फिर भी बाकी विवेक सर, ऑब्वियसली सर पीएसएम इज अ सब्जेक्ट, एक बार अगर उसमें प्यार हो जाए तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द टीचिंग स्किल्स एंड द टीचर, हाउ यू नो इंटीग्रेट ऑल द नॉलेज। एंड बाकी जाइना मैम, शी इज ऑब्वियसली फॉरएवर फेवरेट ऑफ आई थिंक ईच एंड एवरी मेडिको हु नोज हर। बिल्कुल। तो स्पर्श गुप्ता सर का जो टीचिंग पैशन है, आई स्टिल रिमेम्बर उस दिन हमारी क्लास 11 साढ़े 11 तक खींची थी हाँ। रात को। एंड सर मतलब टिल द लास्ट वेरी मोमेंट सर का जो डेडिकेशन था, उन्होंने कोई पॉइंट स्किप नहीं करा, मतलब ही वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मतलब देख के उनको देख के हमें भी हिम्मत आती है, स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि सर इतना डेडिकेटेड हमारे लिए, तो वी आल्सो हैव टू पुश आवरसेल्फ टू द फुलेस्ट। बाकी दीपक मारवा सर भी थे उस क्लासेस में, सो इट वाज बेस्ट सर, इट वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। और सेरेबेलम की जो लास्ट डे पे पार्टी हुई थी, डांस वांस हुआ था, उसमें थे सर आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल था सर, उसी की तो फोटोज है अभी आपको दिखा रहा था मैं। अच्छा, ये बताओ कि मेरा डांस कैसा था उसमें? अरे सर बहुत बढ़िया सर, हमने मिलके ही किया था, पंजाबी गाने चल रहे थे। बहुत बढ़िया। चलो वंश, आप स्टूडेंट्स को जो हमें सुन रहे हैं, पर्टिकुलरली जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं जून के लिए, हाँ आप जी उनको सर। क्या मैसेज देना चाहते हो? मतलब 3 पॉइंट्स जो आपको करने चाहिए और 3 पॉइंट जो आपको नहीं करने चाहिए। सर फर्स्ट पॉइंट विच आई वुड से इज कि अपना जो भी पढ़ाई कर रहे हो, सोर्स एक रखो। फैकल्टीज भी स्विच करना आई डोंट थिंक इज वाइज, बिकॉज हर फैकल्टी के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, एंड उसको अडेप्ट करना इन द वेरी लास्ट क्रूशियल मोमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। जो पढ़ रहे हो उस सोर्स पे स्टिक रह के जस्ट मॉनिटर योर प्रोग्रेस। जीटीज देते देते जस्ट एनालाइज, मतलब जीटी में जैसे आप दे रहे हो तो उसमें ना लास्ट 3 वीकेस्ट सब्जेक्ट्स देखो कौन से किस में स्कोर कितना आ रहा है, एंड देन फोकस देम बिफोर यू डू द नेक्स्ट जीटी।
एंड रिव्यू तो जीटी करना ही है, अदरवाइज जीटी देने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट आई वुड से दिस। सेकेंडली आई वुड से कि कंसिस्टेंसी तो सर मतलब जब तक अंदर से ये ना है ना कि आज पढ़ाई नहीं की, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मतलब दैट इज द मोमेंट जब तक पढ़ना चाहिए, और जितना हो उतना फोर्स नहीं करना पढ़ने के लिए, दैट्स ऑल। एंड फॉर द लास्ट आई वुड से कि ऑब्वियसली बीच में मेरे भी टाइम आया था, आई वाज लाइक सो डिमोटिवेटेड, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं पढ़ना, बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, वट एवर यू लाइक दैट टाइम। मैंने तो बिंज ईटिंग करा कुछ टाइम तक, तो मतलब ठीक है, जो भी वट एवर सूट्स यू बेसिकली, जस्ट ट्राई टू डाइवर्ट योर सेल्फ फॉर दैट एज वेल। एंड फ्रेंड्स के साथ तो ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज अगर मेडिको फ्रेंड्स हैं तो और बढ़िया, दो गालियां सुनाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तेरा नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर स्ट्रेस आ जाता है कि पढ़ना है। या एक क्वेश्चन अगर उन्हें ऐसे पूछे जो हमको नहीं आता होगा, उनका आता होगा, तो और लगता है कि पढ़ना है तो मतलब वो भी कॉन्स्टेंटली पुश और मोटिवेशन। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई वुड से, एक स्टडी पार्टनर जरूर रखो अपने साथ। उसके साथ क्या, अपना भी मोटिवेशन रहता है, वी आर नॉट अलोन इन दैट। वो भी पढ़ेगा, हम भी पढ़ेंगे, हम जिस दिन नहीं पढ़ेंगे वो पढ़ेगा, हमको लगेगा हमारा मिस हो रहा है, जिस दिन वो नहीं पढ़ेगा उसको लगेगा उसका मिस हो रहा है। एंड एक ना वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, एक दूसरे को पुश भी करते हैं कि जीटी देना है तो देना है। मेरी एक स्टडी पार्टनर थी, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, डॉक्टर कृतिका गिरिया, एंड शी ऑल्सो क्लियर्ड हर एफएमजी दिस टाइम, एंड शी वॉज ऑल्सो विद मी इन द cerebellum ORR। तो I would say these 3 points are the best which anyone should keep in mind for. ग्रेट, And हो जाता है, just maintain the consistency. डेफिनेटली। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको Sure. क्या क्या करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। आई एम टेकिंग थर्ड और फोर्थ इंटरव्यू इन अ सीक्वेंस टुडे, एंड एवरी स्टूडेंट हैज टोल्ड मी दैट दिस थिंग कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। So consistency is one thing which everyone whosoever has cleared the exam is saying. तो that means that is the most important thing. आप ज्यादा चाहे मत पढ़ो, बट कंसिस्टेंटली पढ़ो, that is very important। ठीक है। सेकेंड थिंग, कीप गुड फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर स्टडी पार्टनर हो सके तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टडी पार्टनर से स्टडीज जो है ना वो बोझ नहीं लगती, इंटरेस्टिंग लगती है। तो आप एक दूसरे के टारगेट बनाते हो कि आज हमें ये करना है, आज तुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो यू नेवर गेट बोर्ड। के हम स्टडी में मोस्टली ये होता है कि अगर आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो ना, एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ, जिंदगी भर पढ़ता ही रहूंगा क्या, बोरियत हो जाती है। ठीक है, बट अगर आपके साथ दोस्त हैं तो वो इंटरेस्टिंग हो जाती हैं चीजें, तो करना आसान हो जाता है इफ यू कैन। ऑब्वियसली अगर आपके पास स्टडी पार्टनर हो सके तो डेफिनेटली कर लो, नहीं हो तो अकेले भी ऑब्वियसली पढ़ना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कीप स्टिकिंग टू वन सोर्स ओनली, डू नॉट कीप ऑन चेंजिंग दी सोर्सेज इन दी फोमो। हर कोई आजकल फोमो में घूम रहा है, तो प्लीज उसमें मत जाओ। कोई भी सोर्स खराब नहीं है, मैं बार बार कहता हूं, एवरी सोर्स इज गुड, बट स्टिक टू वन। एक को स्टिक करो, उसी को फॉलो करो, और आप डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाओगे। कुछ और ऐड करना चाहते हो वंश? बस सर यही है अभी तो दिस इज ऑल व्हाट एवरीवन शुड फॉलो, एंड डेफिनेटली सक्सेस विल बी देयर। डेफिनेटली। तो वंश, आप आगे क्या इरादा है आपका? सर अभी आई एम गोइंग बैक टू माय यूनिवर्सिटी फॉर कंटिन्यूइंग माय इंटर्नशिप, ओके। and next year I'll come back with a degree as well. So remaining 1 year, up to 2017 bachelor rule tha that we have to do 2 year internship. So remaining 1 year I'll repeat here in India. ओके। एंड विल यू बी प्रिपेयरिंग फॉर पीजी? I want to, but and I'll still maintain the pace. But point is, I can't give NEET PG until and unless I complete 2 years of internship. So maintaining that pace for entire 2 years long is a bit difficult. It won't be difficult if you continue हाँ for 2-3 hours daily, it can be done. हाँ, I wouldn't lose the track of studies. मैं टच में रहूंगा स्टडीज के साथ, एंड ऑब्वियसली स्लोली जैसे अभी तक मैं खींचता हुआ आ रहा था फैमिली को, हाँ, वैसे नीट पीजी भी कर लेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन, मुझे पार्टी कब दे रहे हो? सर जब आप बोलो सर यू है सर, आपकी पोस्टे का भी एक बिल्कुल बिग बिल्कुल। फैन सर। मैं पोर्शे में लेके ड्राइव करके लेके जाऊंगा जहाँ लेके जाएंगे। डन सर, आप जहां बोलोगे वहां जाएंगे। चलो, बहुत बढ़िया यार, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। अपने पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई देना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो थैंक यू मैनेज वंश। मच।